Good morning, respected teachers and all my dear friends. My name is Subramanian, and today I am here to express my views on the topic of Indian mathematician Srinivasa Ramanujan, a legacy of India's greatest mathematical genius. Dr. Srinivasa Ramanujan was one of India's most extraordinary mathematical minds whose brilliant intuition and unconventional methods commonly alternate mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued action. Born into a humble Orthodox Brahmin family in Tirur, Tamil Nadu, Ramanujan demonstrated an unparalleled affinity for mathematics from early childhood. Largely self-taught, he was in complete isolation for years, recording thousands of original theorems in personal notebooks without formal proofs or explanation. His life took a monumental turn in 1930 when he sent a letter containing a long list of complex, unproven theorems to the Roman British mathematician G.S. Hardy at Cambridge University. Hardy immediately recognized the raw, promising genius behind the work and arranged for Ramanujan to travel to England, starting one of the most celebrated collaborations in scientific history. Major mathematical contributions of Ramanujan is the Hardy-Ramanujan partition formula, second, Mock theta function, third, the Ramanujan prime and theta function, etc. The famous Caxicam number of Ramanujan is a highly interesting number. 17,929 is equal to 1 cube plus 12 cube is equal to 9 cube plus 10 cube. 1729 बराबर 1 cube और 12 cube बराबर 9 cube plus 10 cube. And legacy around ongoing impact is Ramanujan ultimately death at the age of 32 cuts short a terminal career. His notebooks containing nearly 3,900 results remain a deep source of inspiration. Over the decades, modern mathematicians have verified his claims, discovering that his intuitive leaps opened entirely new fields of mathematics. To honor his monumental legacy, the Government of India declared December 22, his birthday, as National Mathematics Day. Ramanujan stands as an eternal symbol of pure intellectual power, proving that profound genius can emerge from the most modest circumstances and transcend all geographical and social boundaries. Thank you. Good morning, respected teachers and all my dear friends. My name is Aditya, and I am here to explain the idea of the topic of mathematics of India. And my topic is about Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan was born on December 22nd in 1887 in a village in Andhra State, in Tanjore district. And the son of Srinivasa Iyengar. His name is Srinivasa Ramanujan Iyengar. And one of his famous incidents was one day family teacher of class standard of studying education. His groups were divided among 3 persons, each would get one. Then get one. Each even 1,000 groups were divided among 1,000 persons, each would get one. Thus generalized that any number divided by itself was unity. This made a child of that class jump and laugh. 0 divided by 0 also unity. If no groups are divided, no one will get one. This living was none other than Ramanujan. So intelligent as that of class father of primary school, from all
problem of loneliness, trigonometry, and classes. At the age of 7, he was transferred to the town high school at Vimalpana. He had a scholarship. At the age of 12, he was cleared child mathematician by his teacher. Then first class in matriculation in December 1906, secured the government scholarship, then first examination in art. In 1909, he was married to Government Rama. Government was the job at Clerk Office of Madras. Published his work in the Malaysia of Indian Mathematics and Mathematical Society. In 1911, the Director of the wrote a long article on some properties of Banana NASA correspondence with Professor J. S. Arun. We found that Ramanandan wrote many letters to mathematicians around the world involving one with J. S. Arun. Arun invited Ramanandan and during his visit, Ramanandan wrote 37 some on his and some on his Arun. Despite this, Bharati for his little changing work, he was elected fellow by the ethics of fellow of the World Society. Due to malnutrition, infertility, and he returned to the house and died 1 year later in 1920 at the age of 32. Thank you. बेसिकली देखो बीच बीच में मैं जान बोल के बोल रहा हूँ हमारा नाम नेक्स्ट यही रहो जो बचे हो पीजी के ड्रैगन हो गए मेरी बात बता रहे हैं हम जो अभी वो कर रहे हैं ये पेपर प्रेजेंटेशन का सिर्फ 1% एक्टिविटी होगा ये पिछले बार भी मैंने बताया हम सिर्फ फॉर्मेटिंग बता रहे हैं कि इस तरह से चीजें होती हैं अगर हमको उसमें जानना होगा तो हमको इसमें और भी चीजें मिलती हैं जैसे जब तुम बोलते हो उस पर फिर कुछ सवाल किए जाते हैं जो सामने सुनने वाले रहेंगे और जो एक्सपर्ट रहते हैं वो फिर तुम्हारे जो भी प्रेजेंट किए हो उससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल करते हैं ये सब पेपर प्रेजेंटेशन का पार्ट साथ ही थोड़ा सा कुछ उसमें ऐसा होना चाहिए जो लगे कि सचमुच में रिसर्च में सब कुछ किया गया है वो एकदम ये ना लगे कि लिटरेचर के रूप में बस एक छाप रख दिया जैसे मैंने कहते कहते उसको कहा ना कि जैसे लीलावती ढूंढ के निकाला ऐसा ही तो ढूंढ के अगर अपने पेपर को नहीं बताओगे तो इन जनरल सभी जान रहे हैं वो तो जान ही नहीं लेकिन हम अगर मेहनत करें थोड़ा सा ऐसा करें कुछ एक निश्चित रूप से तैयार ढूंढ कर निकाले पेपर पेपर में तो ज़्यादा बेहतर है मैंने बताया उनको सभी के पेपर अच्छे लग रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है कि सभी अब जो पिछले बार हिचक थी वो खत्म हो चुकी है इस बार उससे आगे है इस बार किसी बच्चे को हिचक नहीं है सभी आ रहे हैं और अपने आप ही आ रहे हैं बच्चे को बोलता हूँ इंडेक्स आ रहा तो कोई भी आ रहा है क्योंकि पिछले बार यह नहीं हुआ तो मैंने तो 1% से तो 5% तक तो इम्प्रूवमेंट अपने आप में किया कि मेरा बच्चे इतना फर्क पड़ा है अभी मेरा यही एक प्रयास को धीरे धीरे क्योंकि आगे जाके तुम बहुत कुछ काम करना है अगर टीचर वगैरह तुम अगर बनते हो क्योंकि हायर एजुकेशन जाने का मतलब है कि नहीं एकेडमिक नहीं जाना है तो वहाँ पर तुमको इतनी समझ होनी चाहिए कि बच्चों के साथ तुम जब जाओ तो तुम बच्चों को तुम भी तो देने लायक हो तभी बच्चे को खोजेगी नहीं तो क्यों खोजेगी हर कॉलेज में हर स्कूल में हर जगह आस पड़ोस में लोग होते हैं ढूंढते उसको ही है जो कुछ किसी को देता है जो नहीं कुछ देता है उस या तो छीन के रखने का प्रयास करता है साइड में रहता है उसको लोग जानते भी नहीं है जी रहा होता है जानते तो हम लोग अगर इस स्तर तक आए हैं सोच लो पीजी में सब नहीं पहुंच पाते हैं पीजी में तुम पढ़ रहे हो ये बड़ी चीज है पीजी में एकदम पहले कितना आसानी भगवा नहीं करता था हमको याद है कि इसमें हम एडमिशन किए थे 2000 की बात है तो 25-26% एडमिशन हुआ था लेकिन सारे पीजी नहीं कर पाए कई उसमें से छोड़ के गए उनसे नहीं हो पाया उस जमाने में हमको अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो ऐसा लगेगा 11 बजे क्लास शुरू होती 5 बजे तक कंटिन्यू क्लास होती एक घंटे का एक क्लास होता था अगर मैं टीचर हमारा बीच में ब्रेक भी नहीं एक बार लंच ब्रेक करके आए वो भी नहीं बहुत बार इतना है बाद में एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में आने जाने में टीचर के जितना समय लगा फिर बात हो जाने
बैठ जाना है, अगर बाहर निकल के तो घूम नहीं सकते। और हर क्लास में अटेंडेंस, हर टीचर आएंगे अटेंडेंस, और हर एक का अटेंडेंस 75% पूरा होगा तब फॉर्म भरा था। इवन मैं अपनी बात बताऊँ, उसी समय मेरी शादी हुई थी फर्स्ट ईयर में ही, जब फर्स्ट पार्ट को लोगों, तो मेरा भी कुछ क्लासेस सैंपल हुआ, तो हमको अलग से जाके क्लास करना और तब जाके फॉर्म भर पाए। तो 4-5 मित्र थे जो रह गए थे, 3 तो कोई पक्का याद है, जिसमें से एक और टीचर ही है, वो मैथमेटिक्स का टीचर है, उसका नाम उत्तम है, एक वो, एक और हम, एक और कोई लड़का था याद है। हम लोग जाते थे अटेंडेंस कुछ टीचर से बनवाते थे ताकि क्लास 75% नहीं हुआ, तब जाके वो क्लियर हुआ, तब जाके ऑर्डर मिला के जाके फॉर्म भर सकता। तो मेहनत उस समय जब 11 बजे से 5 तक पढ़े थे, कहीं तो बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके क्लास में ही पढ़ाया होती थी, लोगों का काम चल गया। और उस जमाने में भी हम लोग यहाँ तो लोग बहुत कुछ करते हो, अगर भागलपुर की तरफ चले जाओगे तो पीजी के तो क्लास में तो पीछे की तरफ नहीं ले सकते परीक्षा करना है, जबकि एक ही अपने होम सेंटर में काम होता है, तो भी 73% मार्क्स हम ले ही आए मेहनत करके। और भी 2 बच्चे थे जो लगभग हम लोगों में से 5-7 बच्चे थे जो बढ़िया थे, और सभी जो है कहीं कुछ कर दिया, ये भी बात, जितने भी लोग भी तक थे, कोई +2 में है, कोई सेकेंडरी में, लेकिन सब कहीं ना कहीं है। ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर अगर सीखते हो सफलता के लिए यहाँ से हमेशा बने रहते हैं। तो प्रयास करो, वो माहौल यहाँ नहीं है कि 11 से 5 तक बैठना है, तो लोग सभी लोग कहीं जगह कहीं पर अपनी इंगेज होते हैं। जब कभी हम लोग इस तरह का मौका मिलता है तो थोड़ा सा और आप एफर्ट लगा कराओ, तो जो हम लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे, हम लोग खुद भी महसूस करोगे कि कुछ हम लोगों ने किया। यूँ ही पीजी को एक सर्टिफिकेट के रूप में लेके नहीं है, ठीक है, और पीजी का सर्टिफिकेट का मतलब कुछ होता है। अगर मैं अपने बारे में घटना सुनाऊँ तो अच्छा लगेगा। मेरे साथ अब ये अच्छा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, हमारे घर में ऐसे अगर मेरे आनंद मेरे घर से किसी बच्चे ने पढ़ा है तो पूरे गांव वाले को बताया कि नहीं भी पूछ सकते हैं। ऐसी घटना मेरे साथ इंटर पास किए थे, अभी इंटर का परीक्षा रिजल्ट भी नहीं है, इंटर का परीक्षा नहीं आए थे, बगल के गाँव में दूर मार्केट होता है, मार्केट गए सब खरीदारी में एक लड़का आता है तो पूछता है भैया हमको जो है इंटर का सवाल ये बनता है, हम मार्केट में और पूछ दिया तो अपने मैं बताते फिर जगह करके लिए बहुत कुछ बताया, बता भी दिए, लेकिन उनकी यह समझ में आया कि अगर आप के साथ एक लग गया कि आप पीजी कर रहे हैं, यूनी कर रहे हैं, मतलब आप यह नहीं कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स से आज हम बता नहीं पाए, सवाल नहीं बता पाए। दूसरे सब्जेक्ट वाले को नहीं पूछता है, मैथमेटिक्स वाले को घर में पूछता है, नहीं बताइएगा, और तो उसमें क्या बोलते हैं पढ़े नहीं है, ये रुका भी नहीं। तो बड़ी जिम्मेदारी है मैथमेटिक्स वाले के साथ, क्योंकि हर कोई हर जगह जहाँ मौका लगे घूमने की अगर किसी ने किसी का रोज निकल क्या बोल सकते देखा लोगों को अलग ढंग से ट्रीट ही करेंगे, अब बेहतर ढंग से, लेकिन साथ किया ये देखा जाएगा कि दूसरे उस लायक भी ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिससे जिंदगी में मुझे बना के रखूँ। तो हम लोग यह सीखे हम कि हम वो जो सब कुछ पढ़ रहा है, जैसे सब कुछ चल रहा है, इंटर पास कर दिया, उससे मेरा काम चलने वाला नहीं, हमको उससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो ग्रेजुएशन के टाइम में उस समय इतना पंखा और ऐसी नहीं हुआ करता था, दिल्ली वगैरह तो बहुत खराब थे, तो सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक सारे क्रियाओं के साथ साथ अपना खाना बनाने से लेकर अपना कपड़ा साफ करने तक और क्लास जाने तक सिर्फ इतना ही काम है, किताबों और हमें और नहीं है। बस जानते हैं तो बना रहे, नहीं जानते हैं तो लगे मैं पूछ के इससे उससे जहाँ से हो रहा है आ रहे हैं फिर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 साल लगातार मेहनत की तो तब जाके मेरा घर पूरी मैथमेटिक्स कुछ आता है। इंटर विद्यार्थी के रूप में पढ़ के जा रहे थे।
हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि तो छोटी छोटी घटनाएं घटी, लेकिन हमको यहाँ से पहुँचा दिया था। अगर वो लड़का हमको नहीं होता तो शायद हम उतने इंटरेस्टेड नहीं होते कि हमको लड़के को सीखना है, क्योंकि फिर किसी को पूछ देगा आपने जाना है तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि इंटर का विद्यार्थी को इंटर जवाब विद्यार्थी नहीं तो तुम लोग खेल बदल करेगा। इंटर का विद्यार्थी कितना पढ़ने में सीरियस होता है, थोड़ा थोड़ा ही धूप नहीं होता है, पढ़ रहे हैं, खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो घुस किया यहाँ तक पहुंचे। इसी तरह फिर कभी लगा कि नहीं अब इसके बिना काम नहीं चलेगा, वो 25 में हम लोग मतलब किससे चलता था, कौन आगे बढ़ सकता है, तो दो तीन ग्रुप, उसमें 2 ग्रुप लोगों को प्रेशर चलता था, लेकिन वो नंबर लगा कि हम लोग उसके खास करके वो भागलपुर प्रॉपर कॉलेज में पढ़े हुए थे, हम लोग और भागलपुर कॉलेज से पढ़ के आए, वो टॉप के डीएपी कॉलेज के विद्यार्थी थे, महामारी कॉलेज के विद्यार्थी थे, हम डीबी कॉलेज में बचा के विद्यार्थी थे। उसको लगता था कि क्या जानेगा, हमसे ज़्यादा तो जान नहीं सकता है, तो हम लोगों ने इस बात को लेकर हमेशा करना रखता है, आप सीधी युद्ध कर सकते हो, कोल्ड वार के रूप में कि कौन बेहतर कर सकता है, क्लास तो होता है एग्जाम में। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन आदमी को खुश कर देती है कि नहीं अब आपको सबके सामने प्रूव करना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, तो आप बेहतर कर जाएंगे, बेहतर करेंगे, जीवन में वो चीज़ सीखी भी रहेगी। तो कुछ इस तरह का चीज़ ढूंढते रहो अपने अंदर, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, तब जाके जो है सफलता मिलेगी। अगर सामान्य ढंग से लोग तो नहीं, तब वो सामान्य ही बन के रह जाओगे। जो कहता है हम शिकायत करता है कि हम तो बीए पास है लेकिन हमको नौकरी नहीं मिली, हम तो एमए पास है हमको नौकरी मिली। नौकरी अगर पास करने से मिलती तो फिर दिक्कत क्या है? नौकरी योग्य को मिलती है, पास करना इससे पापा करते हैं कि हाँ आप उस कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वह आपका है, उसके लिए आपको उसके योग्य होना पड़ता है और उसके लिए फिर मेहनत करना। ठीक है, चलो शुरू करो। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सम्मानित शिक्षक और प्रिय साथियों एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार झा है और मैं पीजी सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं भारत के महान व्यक्ति खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आर्यभट्ट को भारतीय गणित और खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने विज्ञान और गणित को के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। सबसे पहले मैं आर्यभट्ट का परिचय दे दूँ। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वे प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों और खगोलशास्त्रियों में से एक थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही गणित और खगोल विज्ञान में असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गणित में उनका योगदान दशमलव पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीजगणित और त्रिकोणमिति के कई सिद्धांत